أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، یہ جلسہ جو منعقد ہوا ہے یہ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے بینر تلے منعقد ہوا ہے۔ اس جلسے میں ہمارے مہمان جو پٹنہ سے تشریف لائے ہیں ان کا بیان ہونا ہے، اور ہماری بات چیت تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں مرکز میں بھی اور ادھر ادھر بھی، لیکن جو ہمارے مہمان ہیں ان کو سننا ہے انشاءاللہ۔ لیکن جو جلسوں میں بے ترتیبی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ مارکیٹ کے زینت بنتے ہیں۔ یہ پنڈال میں جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس روڈ پہ مٹر گشتی کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی اس نے دکانیں نہیں دیکھی، بازار نہیں دیکھا، اور ہوٹل کا سامان اپنی زندگی میں کبھی کھایا ہی نہیں۔ اس کے دل میں ارادہ ہوا کہ پرسرائی میں جلسہ ہو رہا ہے، چلو زندگی میں کبھی ہوٹل میں چائے نہیں پیا اور کچھ کھایا نہیں تو چلو پرسرائی گاؤں کے جلسے میں کھانا۔ بے شرمی کی انتہا، رات کے 11 بج رہے ہیں اور ہوٹل بازی کر رہے ہیں، اور گھر میں کہا کہ آئے بیوی کو جلسہ میں جا رہے ہیں تقریر سننے کے لیے۔ بیٹا اپنے باپ سے کہا کہ ہم جلسہ میں جا رہے ہیں تقریر سننے کے لیے، اور یہاں بیٹا مٹر گشتی کر رہا ہے، شوہر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ اسی مقصد سے جلسہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جلسوں کو میلہ اور ٹھیلا بنا دیا گیا۔ جلسہ کا مطلب ہے میلہ، جلسہ کا مطلب میلہ۔ علماء کرام دور دراز سے تشریف لاتے ہیں دین کی بات سنانے کے لیے، اور ہمارے نوجوان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میلہ لگنے والا، غیر مسلم میلہ لگاتے ہیں تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب دین کے نام پر بھی میلہ لگنے لگا ہے، جلسے کے نام پر۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پہلے ہمارے یہاں ایک اور رواج بن گیا، رت کا جلسہ، رات بھر جلسہ۔ گاؤں میں جلسہ ہوگا تو رات بھر جلسہ کریں گے، 10-15 لوگ وہ بیٹھے رہیں گے، ماں بقیہ لوگ مٹر گشتی کریں گے۔ میرے بھائیوں، دین کی بات جہاں پر ہو اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیں۔ جتنی دیر آپ سن سکتے ہیں سن لیں، اور جب آپ کا من کرے کہ سونا ہے تو چپ چاپ اٹھ کے چلے جائیں۔ پوری رات سننا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں آیا کہ ایک عالم صاحب کی تقریر سنوں گا اور چلا جاؤں گا، تو ایک عالم صاحب کی تقریر سن کے چلے جائیں۔ لیکن آپ تقریر سننے آئے ہیں، کبھی اس دکان پہ، کبھی اس گھر پہ، کبھی اس دروازے پہ جا کر مٹر گشتی کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ رات کے وقت میں آنکھ کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، تو رات بھر اگر آپ جگ کر کے رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ویسے تو لوگ نماز میں اتنے کوتاہ ہیں کہ رمضان کے علاوہ نماز پڑھنے کو تیار بھی نہیں۔ رمضان میں رمضانی نماز ہے، ہم لوگ رمضانی نماز، رمضان جیسے آ جائے تو مسجد بھر جاتی ہے، امام صاحب کی بھی پاؤں ہاتھ پھولنے لگتے ہیں اور کمیٹی والوں کی بھی پاؤں ہاتھ پھولنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھیڑ آنے والی، 15 رمضان کے بعد وہ بھیڑ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی عید کی نماز ہوتی ہے سارے لوگ امام صاحب سے گلے ملنا شروع کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ امام صاحب آخری مصافحہ ہے آپ سے، اور آخری مرتبہ گلے مل رہے ہیں، 1 سال کے بعد پھر ملیں گا۔ وہ بیچارہ 1 سال کا انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ موت ہو جائے، اسی لیے 1 سال کی ملاقات ہماری آپ کی ہے۔ میرے بھائیوں، روزانہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آفتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اپنے کرتوت کی سزا ہے۔ آج مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ فجر کی نماز میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 لوگ ہوتے ہیں۔ اگر بارش ہو جائے تو امام صاحب اور مؤذن صاحب، تیسرا کوئی نہیں۔ سارے لوگ کھراٹے سے سو رہے ہیں، بوڑھے، بچے، نوجوان، عورت، مرد سب سو رہے ہیں۔
بے شرمی کی انتہا ہے. آج کا مسلمان واٹر پروف ہو گیا. اسے جتنا بھی سمجھاؤ سب سمجھانا بیکار. اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہر جمعہ کو تقریر کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو پھر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ مولوی لوگ بہت چالاک ہیں، یاد رکھیے گا. بات بتا رہے ہیں، مولوی جتنے ہیں بہت چالاک ہیں. اللہ نے اس کو دین کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کا علم دیا. اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے چاہے مسجد کے ممبر و محراب ہو، جلسہ گاہ ہو یا اجتماع گاہ ہو، جوڑ ہو، ہر اسٹیج پر یہ تقریر کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کل اللہ جب پوچھے گا تجھے علم دیا گیا تھا، تم نے لوگوں کو بتایا، تو وہ رجسٹر کھولا جائے گا اور فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے سمجھایا ہے. یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر موجود، جن کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ مولوی صاحب بچ جائیں گے. اور لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ پاگل ہے، صرف بکتا رہتا. بکتا نہیں ہے، اس سوال کا جواب حل کر رہا ہے. وہ رات کے 12 بجے بھی چلا رہا ہے، وہ اور جمعہ میں بھی چلا رہا ہے، جوڑ میں بھی چلا رہا ہے. یہ چلانا آپ اس کو بیوقوفی مت سمجھیے، یہ بہت عقل مند لوگ ہیں. وہ اس سوال کا جواب حل کر رہے ہیں جو سوال ان سے ہونے والا ہے. اور جتنے لوگ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، چاہے وہ مجمع میں بیٹھ کر کے، چاہے اپنے گھروں کے دروازے پر بیٹھ کر، چاہے اپنے گھروں کے اندر سے سن رہے ہیں، وہ کل اللہ کے سامنے یہ کہنے لگے یا اللہ کسی نے بتایا ہی نہیں. اچھا کسی نے نہیں بتایا؟ یہ جو مسئلہ ہے حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا، ایک مولوی نے نہیں بتایا. اچھا اس کی زندگی کے نام اعمال کھولے جائیں گے. دیکھو کسی مجلس میں یہ شریک ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ پرسرائے گاؤں کے اندر ایک جلسہ ہوا تھا عمارت شریعہ کے بینر تلے، فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں فلاں علماء تشریف لائے تھے اور انہوں نے فلاں فلاں مسئلے پر گفتگو کی تھی، اور اس کے اندر یہ شخص شریک تھا. بچ جائیں گے؟ ارے بولیے نا، بچ جائیں گے نا. ابھی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے بارات کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے. اکثر لوگ منڈی نیچے کیے ہوئے تھے. کیوں؟ ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے. حاجی صاحب، قاضی صاحب، جماعتی صاحب، حافظ جی، عالم صاحب، سب ملوث ہیں اس میں. کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی شریعت پر عمل کرنے کو تیار نہیں. دکھاوے کے لیے پہلی سب میں نماز ہے، دکھاوے کے لیے تسبیح بھی ہے، دکھاوے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کسی گاؤں میں شادی ہوتی ہے سال میں 100، کوئی ایک شادی بتا دے جو سنت کے مطابق ہوتی ہو، ایک مثال کوئی بتا دے. ہم نے نکاح پڑھانا ہی چھوڑ دیا. آپ کہیں گے نکاح کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ آپ سونا باندھتے ہیں 25 بھر، 30 بھر، 20 بھر، یہ گناہ آپ کریں اور نکاح پڑھا کے ہم آپ کے گناہ میں شریک کیوں ہوں؟ ہم تو اپنا ہی بوجھ لے کے جائیں گے، پتہ نہیں کتنی پٹائی ہماری ہوگی. جو ہم نے گناہ کیا ہے، پھر آپ کا گناہ سر پہ لاد کر لے کے کیوں جائے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب 1000 روپے دے رہے ہیں تو نکاح کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ ارے اللہ کے بندے 1000 کو اپنے پاس رکھ لیں، پھر 1000 کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو پٹائی ہونے والی ہے اس سے وہ بہت مشکل کام ہونے والا ہے. لہذا آج کا مسلمان موج میں گھی لگا کر تاؤ دیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو کھٹا یہی گاڑنا ہے. مولوی صاحب آپ نہیں پڑھائیں گے تو کسی صوفی صاحب کو لے آئیں گے، اگر وہ نہیں پڑھائیں گے تو جمعد میاں، ٹورے میاں اور کلو میاں کو لے آئیں گے، لیکن پڑھا لیں گے. آپ سے پڑھانا کوئی فرض ہے؟ مت پڑھاؤ. کس نے کہا پڑھاؤ؟ لیکن یاد رکھیے شریعت کا مذاق جتنا آج کا مسلمان اڑا رہا ہے، جتنا آج کا مسلمان شریعت کو مذاق بنایا ہے، اسی مذاق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے جو ہمارے اوپر رحم کرنے والے ہیں. ابھی ایک مسئلہ آیا تھا الیکشن سے پہلے، یکساں سول کوڈ. سب لوگ کہنے لگے یار یکساں سول کوڈ اگر پاس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نکاح بھی، شادی بھی، وراثت بھی سارے برابر ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟
कितने लोग अपनी बेटियों को हिस्सा देते हैं, कितने लोग अपने बहनों को हिस्सा देते हैं। 100 में 99 लोग अपनी बेटियों के हिस्से को खत्म, माओ के हिस्से को खत्म, बीवी के हिस्से को खत्म, बहन के हिस्से को खत्म। तो अल्लाह आफत नाज़िल नहीं करेगा तो क्या करेगा? लड्डू भेजेगा खाने के लिए। तो ये जो शरीयत पर कदकल लगा रही है हुकूमत, इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है कि हम है? अरे बोलिए ना, कौन है? अमल हम न करें और जब कोई कानून पास होकर के आ जाए तो सारे मुसलमान रोड पे खड़े हो जाते हैं। अभी 3 तलाक का कानून आया, जलसा से, मस्जिद से, हर जगह से समझाया जा रहा है भाई तलाक मत दो, कड़वी कसैली बर्दाश्त कर लो, तो मानने को तैयार नहीं। और जब हुकूमत ने कानून बना दिया तो सारे लोग चिल्ला रहे हैं हमारी शरीयत पर मुदाखलत कर दी, हमारी शरीयत पर मुदाखलत कर दी। अरे सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग को, अकल को ठीक करने के लिए जालिम को मुसल्लत कर दिया और आज चिल्ला रहे हो हमारी शरीयत पर मुदाखलत कर दो। जब भी शरीयत पर अमल करेंगे, किसी माए के लाल के अंदर दम नहीं है कोई शरीयत में कभी मुदाखलत कर। अभी पर्दे की बात आई थी, जब पर्दे की बात आई, बुर्के की बात आई, कर्नाटक में एक मामला पेश आया था मुस्कान लड़की के नाम पर, याद है आप लोगों को खबर कुछ? तो केरला के जज ने फैसला करते हुए कहा था कि अगर शरीयत में पर्दा फर्ज होता, अगर इस्लाम में पर्दा फर्ज होता तो मुसलमान की औरतें 95% बेपर्दा बाजारों में, मार्केटों में, गलियों में, शादी में और रोडों के किनारे घूमती नजर नहीं आती। पता ये चला कि शरीयत में, इस्लाम में पर्दा फर्ज नहीं है, इसलिए मुसलमान औरतें पर्दे में नहीं रहती। किसने मौका दिया? किसने मौका दिया? मौलवी ने मौका दिया। मौलवी तो समझा रहा कि पर्दे में लाओ, तमाम मुसलमानों ने कहा कि नहीं पर्दा में नहीं लाएंगे, तो गैर ने कहा अगर कुरान में ये हुक्म होता तो मुसलमान अमल करते। मौका किसने दिया उसको बोलने? बताइए। अरे हमने दिया ना। तो शरीयत एक हुक्म लाजिम करती है, इस्लाम एक हुक्म लाजिम करता है। मुसलमान जब नहीं मानता, नहीं चलता, एक वक्त आता है कि अल्लाह उस पर किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है। मेरे भाइयों, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में हम सब बैठे हुए हैं, जलसे में हम सब बैठे हुए हैं। कोई दिन, हर दिन, चाहे किसी भी नमाज में हो, चाहे वो फजाइल अमाल की शक्ल में हो, मुंतखबा हदीस की शक्ल में हो या इमाम की तकरीर की शक्ल में हो, हर दिन हमारे कान में दीन की बात पहुंचती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े जलसे हुए, बड़े बड़े इज्तिमात हुए। कहाँ पर? डगरवा में, अररिया में, किशनगंज में, सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं हर जलसे में, हर इज्तिमा में। इसके बावजूद किसी के घर में दिन नजर नहीं आता। हम लोग कर्नाटक भी गए, आंध्रा भी गए, तेलंगाना भी गए, वहां मुसलमानों की तादाद कम और वहां पर मुसलमानों के अंदर जो दीनदारी है, सीमांचल के धरती पर 5% भी दीनदारी नहीं है। 5% भी दीनदारी नहीं है। आप जाकर के देख के आओ, वहां के नौजवानों में जो दीनदारी है, यहाँ के नौजवानों में 1% भी दीनदारी नहीं है। मस्जिद में कौन नमाज पढ़ने जाएंगे? जो धोखा देने से आजिज हो गए, लोगों को परेशान करने से आजिज हो गए और ठगने से आजिज हो गए कि चलो अब मस्जिद का कोना पकड़ लो, तस्बीह को पढ़ते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह ताला जन्नत दे। इसीलिए मकूला मशहूर है, 9 से चुहा खा के बिल्ली हज को गई। तो मेरे भाइयों, नौजवान क्या करेंगे? नौजवान कहेंगे कि नहीं अभी हमारा वक्त है खेलने का, अभी हमारा वक्त है मस्ती लेने का, अभी हमारा वक्त है घूमने का, अभी हमारा वक्त है मटर गश्ती करने का। बाप बेटे को डर से नहीं पड़ता। क्यों? बैलेंस बंद हो जाएगा, ये पैसा जो मिलता है ना बंद हो जाएगा। बाप हाजी साहब है, बाप जमाती साहब है, 20-20 किल्ला लगाए हुए हैं, बेटा शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, रिश्वत ले रहा, लेकिन डर से कुछ नहीं कहता। क्यों? अगर कहा तो पैसा बंद हो जाएगा। अगर इसे कहा दिया कि मस्जिद चलो नमाज पढ़ने के लिए, तो पैसा बंद हो जाएगा। औलाद को कौन समझाए? इमाम साहब समझाएंगे।
औलाद को कौन समझाए? मौलवी साहब समझाएंगे? नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है वो औलाद को समझाए। अगर औलाद नहीं मानती है तो आपने उसके कमाई से अपने आप को दूर क्यों नहीं किया? अल्लाह पूछेगा क्या? अल्लाह आपसे पूछेगा, हमसे पूछेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहल अयाल को जहन्नम के ईंधन बनने से बचाओ। अपने आप को, अपने अहल अयाल को, अपनी औलाद को जहन्नम के ईंधन बनने से बचाओ। जहन्नम जानते हैं, उस आग को समझते हैं। दुनिया में जो आग है, जहन्नम की आग के मुकाबले में 1 गुना है, और जहन्नम की आग 69 गुना इससे ज्यादा है। अल्लाह ने फरमाया, अपने आप को भी, अपने अहलो अयाल को बचाओ। हम नमाजी बन जाएं, हम जमात में जाएं, हम अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक पैदा करने वाले बन जाएं, हम तस्बीह पढ़ने वाले बन जाएं, हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। हमारी औलाद, उनको कौन डराएगा? उनको कौन समझाएगा? उनको कौन रोकेगा? उनको कौन टोकेगा? उनको कौन सही रास्ते पर लाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे बच्चे होते हैं। आज ये पुरफितन दौर में, ये मोबाइल का जो दौर आया है, आप 1 बजे रात में, हम सब चलते रहते हैं, 1 बजे 1:30 बजे रात में रोडों पर चलना होता है तो नुक्कड़ पर, चौक चौराहे पर देखने का 12 मौका मिला कि 12 साल 15 साल के बच्चे 2, 4, 5, 10 बैठ करके सब मोबाइल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कभी आपने अपने घर के बच्चों के बारे में घर में पूछा कि ये फलाना लड़का कहाँ है? अभी 5 दिन पहले, 3 दिन पहले अंदरपुर गांव में एक नाच हुआ, समझ लीजिए आप लोग। अभी भी वो दिमाग में भूत जो सवार था 25 साल पहले, वो खत्म नहीं हुआ। नाच से लोग क्या कर रहे हैं? इससे मुसीबत टल जाएगी, इससे बलाएं टल जाएगी। और नाच करवाया, 10,000 खर्चा भी करवाया। अब फिर उसके बाद जाएंगे वही साहब के पास कि फूंक दीजिए। क्यों फूंक गए? ये मुसीबत खत्म न हो रही है। अरे नाच करवाया तो खत्म करवा लो। क्यों आए तुम मौलवी के पास? क्यों आए तुम हाफिज जी के पास? क्यों तुम कुरान से पढ़वा रहे हो, फुकवा रहे हो? मेरे भाइयों, गैरुल्लाह से आज भी हमारा ताल्लुक बना हुआ है। गैरुल्लाह से हमारा दिमाग से गैरुल्लाह हटा नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सही तरबियत दी। ये बच्चे उस दिन देखा हमने, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे टीम बना के जा रहे हैं। इधर से उत्तर तरफ से जा रहे हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा था, 10 बजे रात की बात है, 11 बजे रात की बात है। वो बच्चे किसके थे? वो जो 8 साल से 12 साल, 13 साल के बच्चे नाच देखने जा रहे हो, किसके बच्चे थे? गैर मुस्लिम के थे, क्रिश्चियन के थे, यहूदियों के थे, कम्युनिस्टों के थे, कम्युनिज्म के थे। वो सारे बच्चे हमारे समाज के थे। क्या उन बच्चे के गार्जियन ने उन बच्चों से पूछा तुम कहां गए थे? बच्चा है कोई साहब, क्या करें, समझता नहीं, समझ जाएगा जब बड़ा होगा। अच्छा, बच्चा बड़ा हुआ, 18 साल, 20 साल, 22 साल में शादी करा दी बाप ने। शादी कराने के बाद अब वो अलग हो गया। मैं एक मिसाल दिया करता हूं, उसको आप समझिए अच्छी तरह से। जैद के पास 4 बेटे, और जैद जहां पर घर बनाया उसी के बाजू में एक सेठ साहब का घर, मुखिया जी का घर, 3 मंजिला घर। जैद ने कहा कि बेटे, अगर मुखिया जी के बराबर मकान बनाना है तो जल्दी से बाहर चले जाओ। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र, सबको, किसी को दिल्ली भेजा, किसी को पंजाब भेजा, किसी को चेन्नई, किसी को बेंगलोर भेज दिया, जाओ कमा करके लाओ। और हर एक पर 10-10 हजार रुपए बांध दिया, 40,000 महाना तुमको भेजना। चारों बेटों ने कमाई की और 40,000 मंथली भेजना शुरू किया। जैद अब नुक्कड़ पे बैठता है, चाय की दुकान पे बैठता, गड्डी निकालता है जेब से, गिनती करता है। अरे मियाँ कहाँ से पैसे आए? आप मेरे बच्चे कमाते हैं, माशाल्लाह बहुत कमाते हैं। अब कमाने के दिन हमारे खत्म हो गए, अब तो ऐश के दिन हमारे शुरू हुए हैं। अब यहाँ चाय, वहाँ पान, यहाँ सिगरेट, वहाँ बीड़ी चल रही हो। उसके बाद 22 साल, 21 साल उम्र हुई, इधर 1 मंजिला मकान भी तैयार हो गया, और इधर देखते ही देखते ये बाप चौधरी भी बन गया। अब बेटा जब आया तो उसने कहा कि शादी करा लो।
एक बेटी की शादी हो गई, फिर दूसरे की हो गई, फिर तीसरे की हो गई, फिर चौथे की हो गई, एक एक साल के फासले पर चारों की शादी हो गई। उसके बाद जनाब मुंह लटकाए दुकान पे बैठे हुए। उमर आया, कहा क्या हुआ मियां? कहा बहुत बुरे दिन आ गए। क्या हुआ कुछ तो बताओ। अरे हमने बहुत जतन से घर बना के दिया, इन बच्चों को हुनर दिया, अकल दी, लेकिन आज इन बच्चों ने मुझे बेदखल कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मैं दूसरे की खेतों में काम करूं। अब मियां 40 साल की उम्र में बूढ़ा बना था, 60 साल की उम्र में जवान बन गया। अब कंधे पे कुदाल लेता है, हाथ में खुरपी लेता है और हल जोतने के लिए दूसरे के खेत पहुंचता है। क्यों मियां? अब कमाए बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए कि बेटों ने भत्ता बंद कर दिया। ये जो बेटों ने भत्ता बंद कर दिया, इसकी मासूम जिंदगी से आपने खिलवाड़ किया है, इसलिए बुढ़ापे में लात भी आपको ही खाना पड़ेगा। इसलिए कि जवानी जिस वक्त उनकी थी, बचपना जिस वक्त था, जवानी जब आई थी उससे पहले पहले अगर उसको तालीम और तरबियत दे देते तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बन जाता। और जब उसकी मासूमियत को तुमने बर्बाद किया है तो बुढ़ापे को वो खुद बर्बाद करेगा, ताकि दोनों बदला हो। बात समझ में आई? ये बूढ़े लोग, बाज लोग रोते हैं, घूमते फिरते हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ। क्या जुल्म हुआ? कि बच्चे हमें देखते नहीं, बच्चे हमें खिलाते नहीं, मासूमियत को तुमने बर्बाद किया है। इसीलिए उन बच्चों ने ठान लिया है कि बुढ़ापा इनकी बर्बाद नहीं करना, ताकि इसको कभी सुकून ना आए, कभी चैन ना आए, कभी सुकून से इनको खाना नसीब ना हो। मेरे भाइयों, अगर आप होश के नाखून लेना चाहते हैं तो अपनी औलाद की फिक्र कीजिए, अपनी नस्ल की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आगे चल के आपके लिए बच्चे दर्द-ए-सर होंगे। अभी ज्यादातर बच्चे नशाखोर बन रहे हैं, सनफेक्स पी रहे हैं, और वो दवाई आती है खांसी की, वो दवाई जिस पर पाबंदी है, वो दवाई खरीद करके मुकम्मल पी जाते हैं और सनफेक्स से पी करके रोड में मजनू की तरह घूम रहे हैं। आपके 8 साल का बेटा, आपका 10 साल का बेटा जो नशाखोर बन रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों की सही तरबियत न करने का एक और मैं बात आपको बताऊं, ये बच्चे जो हमारे हैं, इनको आपने बड़े बड़े मोबाइल थमा दिए, इतने बड़े बड़े। क्यों? अब हमारा बच्चा जो है मोबाइल चलाना जानता है। देखिए हमारा बेटा मोबाइल चलाना जानता है। उम्र क्या है? बस महज 9 साल है, लेकिन मोबाइल चला रहा है, बेहतरीन चला रहा है। आप उम्मीद करते हैं मेरा बेटा मुफ्ती साहब जैसा बन जाए, इमाम साहब जैसा बन जाए, मुफ्ती सुहाब साहब जो पटना में है उन जैसा बन जाए। कयामत की सुबह तक नहीं बनेगा। इसलिए कि जब फाउंडेशन गलत हो तो फिर उस फाउंडेशन पर अगर इमारत खड़ी हो जाए वो इमारत लड़बड़ करेगी, गिर जाएगी। जब औलाद की सही तरबियत नहीं होगी बचपने में, जवानी में चाहे आप चिल्ला लो, चाहे आप चीख लो, चाहे रो लो, चाहे किसी के पास ले जाओ, 1000 ताबीज गंडा कर लो, कुछ होने वाला नहीं। असल तो जिस वक्त तरबियत करनी थी उस वक्त आपने कहा कि मेरा बच्चा मोबाइल चला लेता है, मेरा बच्चा हर फंक्शन को निकाल लेता है। जब वो गुनाहों के समंदर में घुस गया, जब वो फहाशी उरियानी के दलदल में घुस गया, तो अब वो क्या करेगा? उसको देखने के बाद अब उस काम को कर गुजरेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। तो आज हर गांव से खबर आती है फला की लड़की को लेकर फला का लड़का भाग गया, रोजाना खबर आती है। इसके असबाब क्या हैं? किस बुनियाद पर यह सब चीज हो रही है? इस गुनाह के जिम्मेदार कौन है? दुनिया में कुछ हो जाए, समाज में कुछ हो जाए, गांव में कुछ हो जाए तो हम आसानी से कह देते हैं पहले के लोग बड़े अच्छे थे। जितनी दीन की बात होती है, जितनी जमात में लोग ज्यादा घूमते हैं, उतनी ही बुराई आ रही है। ये जमात वालों को बुराई का मुकम्मल ठेकरा उसके सर फोड़ दिया। दीन की बात करने वालों के सर पे सारे गुनाह डाल दिए कि पहले दीन की बात कम होती थी, जमातें कम निकलती थी, इतने गुनाह नहीं होते थे। अब ज्यादा निकलने लगी तो गुनाह बढ़ गए। देखा आपने? मोबाइल खरीद के आप दें, रास्ता हमवार आप करें,
उस उम्र में उसको ना पढ़ाएं लिखाएं, कुछ ना करें। जब वो उस गुनाह में फंस जाए, वाकया पेश आ जाए, घिनौनी बात पेश आ जाए, उसका ठेकरा किस पर फोड़ दिया जाए? दीन की बात करने वालों पर, जमात में जाने वालों पर, जमात का काम करने वालों पर। ये समाज में यही लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि समाज को सुधारें। कैसे सुधरेगा समाज जब हम खुद सुधरने के लिए तैयार ना हो? इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम लोग होश के नाखुन लें। इस वक्त इर्तिदाद का दौर चल रहा है। बच्चे, ये जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमारे घरों में हैं, शादी ब्याह का रिश्ता लगता है, लड़की भी देखते हैं, लड़का भी देखा जाता है। क्या कभी रिश्ता करते वक्त लड़का से पूछा कि जरा दो पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा सुना दो? क्या भाई पूछा? नहीं पूछा। काम क्या करता है? ठेकेदार है। काम क्या करता है? फर्नीचर का बेहतरीन मिस्त्री है, दुकानदार है, 50,000 सैलरी है, 50,000 आमदनी है। फूल के कुप्पा हो गया, 50,000, 1,00,000 आमदनी है। अरे दीन के बारे में कुछ पता है? अरे मियाँ वो तो सीख जाएगा, उसके बारे में क्यों टेंशन ले? उसके बारे में टेंशन लेना नहीं है। कलमा उसे पता नहीं, नबी का नाम उसे पता नहीं, दीन उसे पता नहीं, इस्लाम उसे पता नहीं, अल्लाह रसूल उसे पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, लेकिन कमाई अच्छी हो जाए सब चलेगा, सब चलेगा। तो जाहिर बात है, जिस मुआशरे में इस तरह के नौजवान जगह लेंगे, वो मुआशरा आगे चल के तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और दीन से बदतीन मुआशरा होगा। फिर उस मुआशरे में ना नमाजी नजर आएंगे, ना उस मुआशरे में कोई हलाल हराम की तमीज करने वाला नजर आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा मुआशरा अच्छा हो, हमारा घर अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छा हो, तो हम अपनी औलाद की फिक्र करें, हम अपनी नस्ल की फिक्र करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म करो, जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारो, और भाई बहन के बिस्तर को अलग कर दो। क्या कहा? 7 साल में नमाज का हुक्म, 10 साल हो जाए ना पढ़े तो मारो, हल्की मार मारो। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने को कहते हैं? कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को 10 साल की उम्र में ना पढ़े तो मारे? हम समझते हैं शायद 100 में एक मिसाल मिल जाए। कब कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए? 18 साल 20 साल हो जाए तब कहते हैं बेटा नमाज पढ़ ले तो अच्छा होता, बेटी नमाज पढ़ ले तो अच्छा होता। अब क्या नमाज पढ़ेगी वो? अब वो सोच रही है, या वो लड़का सोच रहा है, अब तो हमारे दिन घूमने के हैं, हमारे दिन मजे लेने के हैं, इस वक्त मस्जिद में जाकर के तस्बीह पढ़ेंगे, अभी तो हमारे दिन कुछ और है, जब वक्त आएगा तो पढ़ लेंगे। अब आपके समझाने से वो बिल्कुल नहीं जाएगा। किसी आलिम साहब को, किसी कुतुब अब्दाल को भी ले आइए, जल्दी वो नहीं सुधरेगा, इसलिए कि उसकी बुनियाद ही से गड़बड़ी शुरू हो गई। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जिस नबी ने 7 साल के हुक्म में बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म किया, 10 साल की उम्र में ना पढ़े तो मारने का हुक्म किया, उस नबी की उम्मती अपनी औलाद के ताल्लुक से क्या फिक्र करती है? हर यहाँ बाप बैठे हुए हैं, उसे अपनी औलाद के बारे में खुद पता है, वो अपनी औलाद की क्या तरबियत करते हैं। हजरत मौलाना शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, जो फज़ाइल आमाल के मुसन्निफ हैं, फज़ाइल आमाल किताब जानते हैं ना आप लोग? अरे बोलिए ना, आप लोग जानते हैं ना? उस किताब के जो मुसन्निफ हैं, लिखने वाले, मैं उनके बारे में बताता हूं। उन्होंने किताब लिखी है, अपनी जिंदगी पर आप बीती। उस किताब में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? जब मेरी उम्र 5 साल की थी तो 5 वक्त की नमाज मेरे वालिद मोहतरम एक जगह पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे। उन्होंने जगह मुतय्यन कर दी थी, जोहर की नमाज यहाँ पढ़ोगे, असर की वहां पढ़ोगे, मगरिब की वहां पढ़ोगे, इशा की वहां पढ़ोगे, फजर की वहां पढ़ोगे। क्यों? अगर एक ही जगह तमाम नमाज पढ़ेगा तो किसी न किसी साथी से दोस्ती हो जाएगी, फिर ये पढ़ नहीं पाएगा। बहुत नाजुक बात बता रहा हूं, पढ़ नहीं पाएगा। हमारा बच्चा किसके साथ बैठता है, किसके साथ खाता है, किसके साथ जाता है, किसके साथ घूमता है? कभी हमने नोटिस लिया कि बेटा मेरा कहाँ है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ खा रहा है, वो लड़का कैसा है? कभी नहीं, कभी नहीं।
जब गुनाह कर लेता है, जुर्म सामने आ जाता है, मालूम हो जाता है कि पकड़ा चला गया, मालूम हो जाता है कि चोरी के इल्जाम में थाना पहुंच चुका है, तो लोगों को कहते हैं मेरा बेटा बड़ा अच्छा था, कभी उसने कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे चला गया, ये झूठा इल्जाम निकला। नहीं, उसके गुनाह सर से ऊपर हो चुके थे, अल्लाह ने उसे छूट दिया, ढील दिया। जब आपने गिरफ्त नहीं की, अल्लाह ने गिरफ्त करवा के उसे गिरफ्तार करवा दिया। अब आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा मासूम था, मेरा बेटा कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया, जब हद से तजावुज कर गया तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए मेरे भाइयों, औलाद की फिक्र कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इत्तकुल्लाह वअदिलू फी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में इंसाफ कायम करो। हमारी औलाद दोनों है, बेटा भी बेटी भी, दोनों अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है। औलाद की शक्ल में आपको अल्लाह बेटा भी देता है, बेटी भी देता है। किसी को बेटा ही बेटा देता है, किसी को बेटी ही बेटी देता है, किसी को कुछ नहीं देता। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है। इस नियामत की हिफाजत करना, इस नियामत की तरबियत करना, इस नियामत को संभाल के रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अगर वो इस नियामत की कदर नहीं करेगा, ना कदरी करेगा, तो यही औलाद उसके लिए दर्द सर बन जाएगी, यही औलाद उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, यही औलाद उसके लिए परेशानी का जरिया बन जाएगी। जबकि औलाद अल्लाह की तरफ से नियामत है, यह औलाद उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, औलाद हमारे पास दोनों है, लड़का भी है लड़की भी है। हम कभी भी इस नजरिए से ना देखें ये बेटा है लिहाजा इसको ऊपर रखो, ये बेटी है लिहाजा इसको हमेशा नीचे रखो, इस पर नजरअंदाज करो। नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वअदिलू फी औलादिकुम, औलाद के दरमियान इंसाफ करो। अगर आप बेटे के लिए 1000 रुपए के कपड़े लाते हो, इंसाफ ये है कि बेटी के लिए भी उतने ही कपड़े लाओ। अगर बेटे को आप पढ़ाते हो तो बेटी को भी आप पढ़ाओ। अगर बेटे के लिए कोई सामान खरीदते हो, इंसाफ ये है उतनी ही कीमत का सामान बेटी के लिए भी खरीदो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बेटी की शादी हो गई, पढ़ाई का मामला आया सामने, बच्ची को पढ़ाना है, अरे ये पराया धन है, इसको पढ़ा के क्या होगा, शादी तो हो जाएगी, दूसरे के घर चली जाएगी, थोड़ा बहुत इसको जानकारी दे दो, उसके बाद छुट्टी, इस पर पैसा खर्चा करने से क्या फायदा, बेटे पर क्यों खर्च कर रहे हो? इसलिए कि बेटा क्या है, घर का चिराग है, बाप मर जाएगा तो घर पर चिराग जलाने वाला बेटा ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटे से चली कि बेटी से चली? अरे बोलिए ना आप लोग, कोई नहीं बोल रहे। पता नहीं बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बेटी से नस्ल चली, बेटा से नहीं। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा, 4 बेटियां थी और चारों बेटियों में से सिर्फ हजरत फातिमा से 2 बेटे हुए, हजरत हसन हुसैन, और दोनों बेटे से नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ और सईद वहीं से है। तो लोग समझते हैं कि बेटी पराया धन है, इसकी तालीम और तरबियत। सुन लीजिए आप, अगर आपके पास 2 बेटी है, अगर आपने तालीम और तरबियत देकर उसका निकाह करा दिया, अल्लाह का रसूल फरमाते हैं कि वह बाप जन्नत में होगा। हदीस में ये नहीं कहा बेटे को तालीम तरबियत दिला दो तुम जन्नत में चले जाओ, बेटी के बारे में कहा है। 3 बेटी हो उस पर भी कहा, 1 बेटी हो उस पर भी कहा कि तालीम और तरबियत देकर तुम निकाह करा दो, तुम जन्नती हो। मेरे भाइयों, आज हम क्या करते हैं, जब बेटी की भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, निकाह के बाद अब क्या करें, मरने का वक्त करीब है, तो बेटे को बुलाया, चलो चलो जल्दी से सारे जायदाद हम तुम्हें कर देते हैं, वरना तुम्हारे पास जो बहनें हैं मेरे मरने के बाद नोच करके खा जाएगी, सारी जमीनें सारे जायदाद करके दे दिया। अब मर रहे हैं जनाब, अब क्या है, जमीनें कर दी, अब बेटा उसे लात मार रहा है, घूसा मार रहा है, अब बूढ़े मियां भाग रहे हैं, मौलवी साहब देखिए इंसाफ कर दीजिए, मुखिया जी इंसाफ कर दीजिए, सरपंच साहब इंसाफ कर दीजिए। अरे खाक इंसाफ हो गया, अल्लाह ताला ने अब तेरे तकदीर में और तेरे ऊपर औलाद को मुसल्लत कर दिया, जिससे लात मारते रहो यहां तक कि कब्र पहुंच जाए, तेरा कोई इंसाफ नहीं। एक साहब आए,
اس نے کہا مفتی صاحب بیٹا دیکھیے گائے بگائے مارتے رہتا ہے، کیا کریں؟ ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اصل میں وہ بیٹے کی زمین تھی، اب میں گاؤں نہیں بتاؤں گا، آدمی کا نام نہیں بتاؤں گا، قریب ہی کے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس لوگ جاتے رہتے ہیں، اس لیے نام بتانے سے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے کی زمین کر دی ہم نے، اسی دن سے پریشانی شروع ہو گئی۔ ہم نے کہا آپ کے لیے کوئی انصاف نہیں ہوگا، ہر دروازے بند ہو گئے، جب تک آپ مر نہ جائیے تب تک آپ پٹائی کھاتے رہے، اور آپ کے لیے کوئی انصاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بیٹیوں کا حصہ خراب کر کے، بند کر کے، نہ دے کر کے بیٹوں کو خوش کیا ہے، اور وہ سزا آپ کو دنیا میں بھی بھگتنی ہے اور آخرت میں بھی، اس لیے اس کا کوئی انصاف دنیا والا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے کچھ لوگ ماشاءاللہ حج کرنے چلے جاتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اب حاجی بنتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ اب حاجی بن رہے ہیں، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے تمام کاغذات کو اکٹھا کرتے ہیں اور بیٹوں کو بند روم میں بلا کر کے پیسے تیار کرو، اس کے بعد جلدی سے جا کر رجسٹری کرا دیتے ہیں، اور بیٹی کو کان تک پتہ نہیں جناب حج کرنے جا رہے ہیں جنت کمانے کے لیے نہیں، اب وہ حج کرنے جا رہے ہیں جہنم کمانے۔ انہوں نے اپنا نام جہنم کے دروازے پر لکھا دیا۔ کم سے کم اتنا بھی لکھ دو اس کاغذ میں کہ ہمارے نطفے سے پیدا ہونے والے یہی 4 بیٹے ہیں، یہ جو 4 بیٹیاں ہیں ہمارے نطفے سے پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کا باپ پتہ نہیں کون ہے۔ کم سے کم اتنا بھی تو لکھوا دو، اتنا کیوں نہیں لکھوا دیتے؟ انکار کر دو کہ یہ بیٹیاں ہمارے نطفے سے نہیں ہیں، ہمارے نطفے سے بیٹے ہیں، اسی لیے ہم نے ساری جائیداد بیٹوں کو کرا دی، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، کتنے گناہ بتایا جائیں، کتنے عیوب بتایا جائیں، کتنے پاپ بتایا جائیں، ایک ہو تو بتایا جائے، انیک ہیں، ایک نہیں انیک ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، صرف مسجد میں جا کر تسبیح پڑھنا دین نہیں ہے، وہ تو ایک دین کا شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، دین تو اور بھی ہیں۔ اگر ان پر عمل نہیں کیا، معاملات بگڑ گئے، حقوق العباد بگڑ گئے، تو یاد رکھیے چاہے ہم پکا نمازی بن جائیں، خوب تسبیح پڑھنے والے بن جائیں، ایک حج نہیں 5 حج کر لیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ حدیث میں کہا گیا کہ جو حج کر لیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب حج کر کے آنے کے بعد اب سرے سے تمام گناہ کریں گے، کیونکہ پچھلے 60 سال کے سارے گناہ ختم ہو گئے، اب 5 سال 10 سال ہماری زندگی ہے، تو لہٰذا خوب کر لیتے ہیں، کیا دقت ہے؟ نہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد نہیں۔ انہیں حقوق العباد میں سے بیٹیوں اور بہنوں اور ماں اور بھائیوں کے حصے بھی شامل ہیں، لہذا جو لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں وہ یاد رکھ لیں، اگر دنیا میں آپ نے اس کا حصہ ہڑپ کر لیا ہے تو آخرت میں ہر حال میں آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاد میں برابری کریں، انصاف کریں، اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو، اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو۔ اولاد میں لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، کبھی اس نظریے سے مت دیکھیے یہ پرائے گھر کے دھن ہے، اس کو شادی کرا کر کے سسرال بھیج دیں گے، یہ لڑکے ہمارے گھر میں رہیں گے، لہذا ساری جائیداد لڑکوں کو دے دیں گے، لڑکیوں کو تو ہم نے جہیز کی شکل میں دے دیا ہے۔ جہیز تو آپ نے اپنی انانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے موج کی لڑائی کو اوپر کرنے کے لیے آپ نے جہیز کا سسٹم کو ایجاد کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جہیز کا سسٹم کو لاگو نہیں کیا ہے۔ اسی لیے جہیز کا جو بھی سسٹم ہمارے سماج میں ہے یہ ہمارے اپنے ہیں، شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ کہتا ہے ہم نے اپنی بیٹی کو 5 لاکھ کا جہیز دیا، 10 لاکھ کا جہیز دیا، وہ آپ نے اپنی انانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے کبر کو برقرار رکھنے کے لیے، سماج میں اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے آپ نے دیا ہے، شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیا ہے۔ اسی لیے شریعت نے جو لازم کیا ہے وہ جائیداد میں حصہ کو لازم کیا ہے کہ بیٹی کو بھی حصہ ہے، بہن کو بھی حصہ ہے، ماں کو بھی حصہ ہے، اور بیوی کے لیے بھی حصہ ہے، لہذا ان کا جو حصہ نکلتا ہے آپ ان کو دے دیجئے، شریعت کا حکم ہے۔ جہیز آپ نہ دیجئے، شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ آپ پر لازم بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اپنی اولاد میں انصاف قائم کریں، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، اگر نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اور اولاد پر ہمیشہ نگاہ رکھیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، رات میں کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کس کے ساتھ کھا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے توجہ نہیں کی یہ اولاد بگڑ جائے گی، یہ اولاد بدماش ہو جائے گی، اس کا ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔
इंशाअल्लाह औलाद पर निगाह रखेंगे भाई? आप लोग बताइए, निगाह रखेंगे? 12 बजे रात में नाच देखने भेज देंगे? नहीं भेजेंगे? तो उस दिन किसने भेजा था? 9 बजे 11-12 बजे तक जो नाच देखने के लिए 8 साल से 12 साल तक के बच्चे झुंड बना के जा रहे हैं। 2 बच्चे कहाँ से आए थे? दिल्ली से आए थे, पटना से आए थे। मेरे भाइयों, आप कभी कोई घर का जायजा ले लीजिए, घर में जरा नजर दौड़ा लीजिए, सिर्फ नुक्कड़ पर बैठ कर चाय नोशी और सिगरेट बीड़ी मत पिया कीजिए, वरना फिर आपको आगे चल के बहुत मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। औलाद पर निगाह रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अभी खिताब का सिलसिला